everyone, welcome and welcome back to my YouTube channel. I'm your host Neha and you're watching my channel. So अभी अपडेट ये है कि मैंने एक न्यू सीरीज स्टार्ट की है जिसमें जितने भी बच्चे एग्रीकल्चर वाले एमबीए करना चाहते हैं बीएचयू से उनके बहुत सारे क्वेश्चंस क्वेरीज रहते हैं। तो मैंने एक सीरीज स्टार्ट की है जिसमें मैं अपने बैचमेट्स के एक्सपीरियंसेस को लाइक जो जो इंटरेस्टेड है अपने एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए कि उन्होंने सीयूईटी को कैसे प्रिपेयर किया, उन्होंने जीडीपीआई कैसे क्वालिफाई किया एंड बहुत सारे और भी क्वेश्चंस उनको एज अ सीरीज में लाऊंगी लाइक दो दो। लेट्स सी कैसे कैसे बनता है, पर अगर बहुत ज़्यादा बच्चे हो जाएंगे सो आई विल मेक अ सीरीज़ वाली वीडियो। तो स्टे ट्यून्ड। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगती है और ये सीरीज़ बहुत अच्छी लगती है, अगर आपकी इससे थोड़ी भी हेल्प होती है सो मेरी मेहनत सफल सफल हो जाएगी। सो लेट्स स्टार्ट टूडेज वीडियो। So today our guests are Ravi and Saurabh. So फर्दर वीडियो में आप उन दोनों को सुनोगे जिसमें मैं उनसे क्वेश्चनिंग कर रही होंगी और वो आंसर दे रहे होंगे। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगेगी तो प्लीज़ लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना। मतलब कोई भी क्वेरी होगी तो आप कमेंट में लिख सकते हो, मैं उसको सॉल्व करने की पूरी पूरी कोशिश करूँगी। ओके, थैंक यू। Hello, प्लीज़ इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। my name is Ravi Kumar Singh, and I'm currently pursuing my Food and Agri Business Management degree from BHU main campus. And regarding my UG completions, I've completed my UG from Varanasi to the Pratap Autonomous College, and further, I'm the first year student of the MBA Food and Agri Business Management. तो क्या आप हमें बता सकते हो कि एमबीए फूड एंड एग्री बिजनेस के लिए आपको कौन सा एग्ज़ाम क्लियर करना पड़ेगा ताकि आप बीएचयू में एडमिशन ले पाओ? Exactly the procedure to take admission, we have to firstly qualify CUT examinations within subject code of COQP 01. That's the subject code of Food and Agri Business Management main campus. Rather, want to take an admission on an ABM South campus, you have to give a CUT exam also with a separate subject code. So firstly, you have to prepare for your CUT exams. You have to clear your CUT. When you will be on a merit list, then you will be given a call letters for GDPI, group discussion and personal interview. On the combined remarks and the combined score card, you will able to take the admission in the Food and Agri Business Management main campus PHU. Do you want to share your GDPI experience with our audience? Yes, exactly. Talking about GDPI, firstly in GD we have to give a best about it, regarding any topic discussions is there. Firstly, I want to clear GD is not about any debate, cross debate. It's about a group discussion in which we have to discuss on any topic which is being provided by our mentors or the exam controllers. So, firstly, my personal experience regarding GD, there are two options of GD topics. Firstly, means you have to select an options from an cheat box, and according to your preference you can also change it, and the preferred scores there you will there your leadership quality, your team spirit is all being remarked on the GD topics. For example, what is the coordinations among the aspirants, and all the reviews can be better seen at that spot. So can you please tell me what's the topic in your GD? I remember my GD topic was early life discussion of farmers and the hunters in their early phase of life. Firstly, we have got a hard topic, I remember, and that was a funny incident also. That was a much hot topic regarding, I think, international trade policies are the topic. But after an voting review, many persons are not agreed to have a discussion on that topic. So they have a second options which is being provided by the examiner board. So second options, I selected the second option from the sheet box, and that was the topic of early life discussions of nomadic herders. There we get separate key points to discuss. For example, early life discussions and human evolutions. As we can say, due to agriculture, we evolved a lot in comparison to the nomadic herders who are still on the nomadic herding and better tribal communities you can see in Africa. Their lifestyles and not today are well settled. You can betterly see. So that was a topic, and we got separate points to discuss there. Okay, thank you, Ravi. So your last question is, would you like to share your GD score with us? I can say my GD score, I got 51 marks out of 60,
and that was a combined score of GD and PI. PI means personal interview. There you will face a lot of questions regarding your academics, your personal life, and many other topics are there. So yes, that was 50. I think I can Thank score better, but I done my no. best on that moment. Thank you so much for the time. Most welcome, Neha. Thank you. Please introduce yourself. Hello Neha, my Hello. name is Saurabh Pathak. I belong to district Basti state Uttar Pradesh. I am currently pursuing MBA in food and agri business from Banaras Hindu University. Actually, I got the campus placement in Dayal Group in my undergraduation, where I got the golden opportunity to enhance my skills such as marketing skill, negotiation skills, communication skills, and my strength, if I talk about my strength, so my strength is the communication skill. I can convince anyone. And if I talk about my hobbies, then I have the hobbies to of tree plantation, traveling, and talking with the strangers. ओके, सो क्या आप हमें बता सकते हो कि आपका प्रीवियस कंपनी में आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? अगर मैं प्रीवियस कंपनी की बात करूं दयाल ग्रुप की, तो मुझे एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली थी पहली बार ग्राउंड लेवल पे काम करने के लिए, फार्मर्स के बीच जाने के लिए, उनकी प्रॉब्लम्स को समझना, वो कैसे किस प्रॉब्लम को डे टू डे लाइफ में फेस करते हैं, और कारपोरेट वर्ल्ड उन प्रॉब्लम्स को कैसे डील करता है, कारपोरेट वर्ल्ड कैसे अपॉर्चुनिटीज़ को खोजता है कि वो अपनी सेल्स को कैसे इंक्रीज कर सकता है, और हम ये फार्मर्स के प्रॉब्लम्स को भी इंश्योर करते हैं कि जो फार्मर का प्रॉब्लम है उसका हम सही और सटीक सोल्यूशन दे सकें। तो इन सब चीज़ों के साथ हमने डील किया और काफ़ी बेहतर लगा कि हमने दोनों चीज़ों को समझने का हमें मौका मिला और हमने अच्छे से काम किया। ओके, सो आपको कब ये थॉट आया कि आपको एमबीए करना चाहिए और वो भी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से? एक्चुअली जब मैं जॉब कर रहा था तो मुझे ऐसा लग रहा था कि कहीं ना कहीं मेरे प्रमोशन में कुछ चीज़ें हैं ऐसी जो मुझे प्रमोशन नहीं मिल पा रहा है। एक्चुअली मैं अपना कॉन्फिडेंस और अपनी चीज़ों को लेकर बहुत बिलीव करता हूँ खुद पर। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि कुछ मेरी जो एजुकेशन है उसमें कुछ इन्हांस करना चाहिए ताकि मुझे जो और अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो मिल सकें। तो फिर मैंने एमबीए करने के लिए सोचा, और सबसे बड़ी बात थी कि मैं इस चीज़ को भी ध्यान रखता हूँ कि आरओआई की बात जब आई तो मुझे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी इस पूरे उसमें बेस्ट लगा। तो मैंने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी को चूज़ किया, और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी एक रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन है, इंस्टीट्यूट है, जो कि अच्छा एजुकेशन प्रोवाइड करने में और अच्छा इन्वायरमेंट प्रोवाइड करने में जाना जाता है, इसलिए मैंने बीएचयू चूज़ की। ओके, सो आपको ऐसा क्या लगता है कि आपकी क्या ऐसी अलग स्ट्रेटजी रही होगी सीयूईटी को क्रैक करने की कि आपको बीएचयू मिल पाया? एक्चुअली मैं जैसे कि सबसे पहले तो ये कहना चाहूँगा कि जो सीयूटी का सिलेबस होता है हमें उसके हिसाब से चलना चाहिए। पहले सीयूटी का सिलेबस डाउनलोड करना चाहिए, उसमें जो जो टॉपिक्स हैं उनको कवर करना चाहिए। लेकिन जो आप पूछ रहे हैं कि आपकी अलग स्ट्रेटजी क्या रही, तो उसमें दो सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जो काफ़ी चैलेंजिंग होते हैं हर एक स्टूडेंट के लिए। यूजी में पढ़ाया तो जाता है लेकिन थोड़ा सा जो पेपर बनाया जाता है सीयूटी का उसमें वो प्रैक्टिकली थोड़ा अच्छा पूछते हैं। तो इसलिए आपको उसमें थोड़ा सा अच्छा आपको करना होगा, उसमें आपको ज़्यादा ध्यान देना होगा, उसके क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करने होंगे, उसके टॉपिक्स को एनालिसिस करना होगा, प्रीवियस ईयर के पेपर्स को देखने होंगे। तो वो सब्जेक्ट्स हैं इकोनॉमिक्स और एक्सटेंशन। जैसे कि मैं अगर अपने बारे में बताऊं तो मैंने 2 बार सीयूटी का एग्ज़ाम दिया है, क्योंकि मेरे लाइफ का समझ लीजिए गोल यही था कि अगर एमबीए करना है सीयूटी से तो बीएचयू ही करना है, बाकी किसी इंस्टीट्यूट को चूज नहीं करना है। तो मैंने 2024 में अटेंड किया था पेपर को, तो मेरे 160 मार्क्स आए। तो मैंने ये एनालिसिस किया कि मेरे इकोनॉमिक्स और एक्सटेंशन के क्वेश्चंस गलत हुए। मैंने पढ़ाई तो किया लेकिन वो प्रॉपर एनालिसिस और डीप स्टडी नहीं कर पाया। तो जब मैं दोबारा पेपर के लिए अपीयर किया तो मैंने हर एक टॉपिक्स को बारीकी से पढ़ा, और जितना मुझसे हो सकता था मैंने इकोनॉमिक्स, एक्सटेंशन और बाकी सब्जेक्ट्स को अच्छे से कवर किया। लेकिन मेरा मेन फोकस जो था इकोनॉमिक्स और एक्सटेंशन, क्योंकि आप अगर पेपर को एनालिसिस करेंगे तो 2024 और 25 दोनों की बात करें तो इकोनॉमिक्स के 10 to 12 क्वेश्चन दोनों ही पेपर्स में आए हुए हैं। तो इकोनॉमिक्स इज द मेजर subject which will play the key role to decide your marks and your selection in the BHU. So ये चीज़ें थी। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। थैंक यू।